Hello students, I am Pragati Kalambe. Welcomes you all on my channel which is for the 12th Commerce Bifocal Banking. I hope my videos are helping you all for the subject of banking. Today we are going to start with our new part of banking to the topic mortgage. In last video we have gone through the types of mortgage, simple mortgage and mortgage by condition set. Today we continue with our next type of mortgage. Okay, just a recap or just some main points. While studying the types of mortgage, three important points are possession of mortgage, ownership of mortgage, and in case of default, sale or foreclosure. Okay, these are the types of mortgage. The first type is simple mortgage. Ownership and possessions remains with the mortgagor. Okay. Second point, mortgagor have personal liability to repay the debt. In case of default, mortgagee, that means bank, has right to sell the property and recover the money with court permission. This is one example. The next type is mortgage by condition sales. There are three conditions. First condition is if the loan is repaid, sale becomes void. Okay, sale क्या हो जाएगा? Void हो जाएगा. That means illegal हो जाएगा. In case loan is not repaid, sale becomes valid. Valid means legal. On the repayment, property is retransferred to the mortgagor. Repayment होने के बाद प्रॉपर्टी का हो जाएगी retransfer हो जाएगी to the customer. ओके, हमने एग्जांपल देखा था इस केस में. मिस्टर ए ने मिस्टर समीर को हाउस सेल किया है. उसके अगेंस्ट मिस्टर समीर ने क्या किया? 50,000 उसको लोन दिया. अगर ये लोन रीपे कर दिया मिस्टर ए ने तो सेल बिकम्स द वॉइड. तो जो सेल है वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा और मिस्टर समीर को वो उसका हाउस उसको रिटर्न देना पड़ेगा. ओके, इफ लोन इज नॉट रीपे, अगर मिस्टर ए ने 50,000 रुपीज रिपेमेंट नहीं किया, वो जो सेल का एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में बिटवीन द मिस्टर समीर एंड मिस्टर ए, द सेल बिकम वैलिड मीन्स इलीगल हो जाएगा और मिस्टर समीर को वो हाउस रिटर्न करने की जरूरत नहीं है. वो हाउस वो रिटेन कर सकता है विथ हिमसेल्फ. ओके, नेक्स्ट ऑन द रीपेमेंट, अगर मिस्टर ए ने पूरा का पूरा रीपेमेंट कर दिया, द प्रॉपर्टी इज रीट्रांसफर टू द मॉर्गेजर. द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द मिस्टर ए. मिस्टर समीर क्या करेगा? वो जो हाउस है वो सेल किया था, वो हाउस मिस्टर ए को रिटर्न कर देगा. ओके, इन दिस केस पोजीशन एंड ओनरशिप ट्रांसफर टू द मॉर्गेजर, ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी. ओके, सॉरी, बैंकर. ओके, now the next and third type, English mortgage. Okay, it is a combination of simple mortgage and mortgage by condition sell. Okay, ये combination है simple mortgage का and mortgage by condition sell का. Okay, so English mortgage includes the properties of both simple mortgage and mortgage by condition sell. Okay, again ये type देखते वक्त we have to keep in mind the 3 points: possession, ownership, and in case of default. Okay, possession and ownership transfer to the mortgagee, that is bank. Okay, at the time of taking loan, on the condition that it will retransfer after the repayment. Okay, ownership and possession both are going to transfer or going to with the mortgagee, that is banker के पास जाएगा at the time of taking loan. On the condition, there is certain condition that it will retransfer after the repayment. Repayment होने के बाद वो जो assets है, वो जो कोलैटरल असेट्स है, वो क्या होगा? मॉर्गेजर को, दैट इज कस्टमर को रिटर्न मिलेगा. ओके, दिस इज द कंडीशन और दिस इज द वन फीचर ऑफ कंडीशन बाय सेल, मॉर्गेज कंडीशन बाय सेल. ओके, ऑन द डिफॉल्ट विद द कोर्ट परमिशन मॉर्गेजर कैन सेल द प्रॉपर्टी. ओके, ऑन द डिफॉल्ट विद द कोर्ट परमिशन मॉर्गेजर कैन सेल द प्रॉपर्टी. इट मीन्स मॉर्गेजर क्या करेगा? दैट इज कस्टमर by mistakenly this return bank. मॉर्गेजर में कस्टमर क्या, कस्टमर की जो प्रॉपर्टी है बैंक क्या करेगा? वो प्रॉपर्टी सेल कर सकता है. ऑन द डिफॉल्ट विद कोर्ट परमिशन मॉर्गेजी चाहिए यहाँ पे, मॉर्गेजी दैट मीन्स बैंक कैन सेल द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ई. क्लियर, समझ में आया? दिस आर इंग्लिश मॉर्गेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ both simple mortgage and mortgage by condition sell. The first point, that means possession and ownership transferred to the mortgagee. This is the feature of mortgage by condition sell, and on the default, the court permission mortgagee, that is bank,
cancel the property. This is a feature of simple. Is that clear? Next point is usufructuary mortgage. Okay, usufructuary. Possession is transferred to the mortgagee. Okay, possession क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा. ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुई, सिर्फ पोजेशन ही ट्रांसफर किया जा रहा है. इन द केस ऑफ usufructuary mortgage, only possession is transferred to the bank. Okay, profit or rent earned by security or earned by assets is adjusted against the debt. Okay, वो जो सिक्योरिटी है और वो जो असेट्स है जिसका पोजीशन बैंक के पास ट्रांसफर किया गया है, उससे जो कुछ भी प्रॉफिट और रेंट अर्न किया जाएगा, that will be adjusted against the debt. That will be adjusted with the against the loan amount. Okay, property is retransferred after the repayment of the loan, adjusting by rent and profit. Okay, let's see the one example. First, Mr. A, Mr. Samir. Okay, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. मिस्टर ए बोरोज अ लोन ऑफ ₹50,000. ठीक है, मिस्टर ए को लोन चाहिए ₹50,000 अगेंस्ट दिस बिल्डिंग. मिस्टर ए की एक बिल्डिंग है विच इज गिवन ऑन द रेंट. उसकी एक बिल्डिंग है, उसने क्या किया, रेंट पे दी वो पूरी बिल्डिंग. ओके, एंड अगेंस्ट दैट बिल्डिंग he want the loan of ₹50,000 from Mr. Samir. Samir is a banking person, that is he is a mortgagee. Okay, मिस्टर ए को 50,000 के अगेंस्ट क्या चाहिए, 50,000 के अगेंस्ट लोन चाहिए, 50,000 का लोन चाहिए अगेंस्ट द बिल्डिंग एंड बिल्डिंग विच इज गिवन ऑन द रेंट. ओके, नाउ मिस्टर समीर, दैट मीन्स बैंक क्या करेगी, पोजीशन ट्रांसफर करवाएगी. मीन्स बिल्डिंग का जो पोजीशन है वो इसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा. क्लियर है? और बैंक क्या करेगी, जितना भी रेंट मिल रहा है फ्रॉम दैट बिल्डिंग वो एज अ लोन अमाउंट और रीपेमेंट ऑफ लोन एक्सेप्ट करेगी विद इंटरेस्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल वो बिल्डिंग से एवरी मंथ 10,000 का लोन आ रहा है, 10,000 का रेंट आ रहा है. ओके, तो मिस्टर समीर, दैट मीन्स बैंक क्या करेगी, वो 10,000 एज अ इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 खुद के पास ही रखेगी. क्लियर? और आफ्टर दैट ऑल द रीपेमेंट ऑफ लोन, वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग रिट्रांसफर की जाएगी टू मिस्टर ए. क्लियर है? समझ में आया? मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उन्होंने क्या किया, रेंट पे दी. ओके, और उसी बिल्डिंग के अगेंस्ट, उसी बिल्डिंग को बैंक के पास रखते हुए उन्होंने 50,000 का लोन लिया है फ्रॉम बैंक. ओके, नाउ बैंक क्या करेगी, वो बिल्डिंग्स में जितने भी रेंटेड घर है, रेंटेड घर से जितना भी रेंट उनको मिलेगा, जितना भी इनकम मिलेगा, वो इनकम 50,000 की अगेंस्ट एज अ इंस्टॉलमेंट वो खुद के पास ही रखेंगे. मिस्टर ए को कोई भी रेंट नहीं मिलेगा, वो सारा रेंट किसको ट्रांसफर किया जाएगा, बैंक को ट्रांसफर किया जाएगा. और जो 10,000 का इंस्टॉलमेंट मिस्टर ए पे करने वाला है फॉर द अमाउंट 50,000, वो रेंट में एडजस्ट किया जाएगा. क्लियर है? और जितने 50,000 का दो नील होने के बाद वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मिस्टर ए को रिटर्न की जाएगी. उसके बाद जो रेंट मिलेगा वो रेंट किसका होगा, मिस्टर ए का ही होगा. इज नोन एज अ यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज. ओके, यहाँ पे लिया है पोजीशन इज ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी. पोजीशन बैंक के पास ट्रांसफर किया जाएगा. मीन्स व्हाट, वो जो बिल्डिंग है जो रेंट पे दी है वो बैंक, उसका पोजीशन बैंक के पास गया. प्रॉफिट और रेंट अर्न बाय द सिक्योरिटी इज एडजस्टेड अगेंस्ट द डेट. ओके, वो बिल्डिंग से जो रेंट मिल रहा है वो रेंट क्या किया, इज एडजस्टेड अगेंस्ट द डेट. जो डेट था 50,000 का जो लोन था, वो लोन का जो इंस्टॉलमेंट था 10,000 का, उसके अगेंस्ट ये रेंट दिया गया. प्रॉपर्टी इज रीट्रांसफर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ लोन एडजस्टेड बाय रेंट और प्रॉफिट. ओके, जब वो 10,000 का लोन और रेंट था वो डेट के अगेंस्ट एडजस्ट किया गया. उसके बाद लोन नील हो गया, और लोन नील होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो बिल्डिंग थी, वो क्या हो गई, रीट्रांसफर की है मिस्टर ए को. दिस ऑल प्रोसेस इज अ यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज. ओके, व्हाट इज द मीन बाय यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज? किसी भी चीज के अगेंस्ट और किसी भी प्रॉफिट और रेंट के अगेंस्ट अगर लोन अमाउंट और डेट एडजस्ट किया जाएगा, इज नोन एज अ यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज. क्लियर? नेक्स्ट, मॉर्गेज बाय टाइटल डीड. ओके, व्हाट इज द मीन बाय टाइटल डीड? तो हम लोग बोलते हैं टाइटल, ओनरशिप. जो ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डीड मीन्स एग्रीमेंट. ठीक है, टाइटल के डॉक्यूमेंट्स या ओनरशिप के जो एग्रीमेंट रहेंगे बिटवीन मॉर्गेजर मॉर्गेजी और बिटवीन बायर एंड सेलर is known as a title deeds or title agreements. Okay, deed is means agreements. Okay, it is created by depositing original title documents to the mortgage. Okay, as we know, mortgage include immovable assets. That means we cannot transfer our assets
फिजिकली टू द बैंक। हम लोग हमारा जो इमूवेबल असेट्स है दैट मीन्स फर्म हो, कंपनी हो, घर हो, बिल्डिंग हो, समथिंग, हम लोग फिजिकली वो बैंक को ट्रांसफर नहीं करते। सो इन दिस केस वी हैव टू डिपॉजिट और वी हैव टू ट्रांसफर द ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ओनरशिप के, वो डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेजर को ट्रांसफर करने पड़ते हैं टू द बैंक। ओके, ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी रिमेन्स विद द मॉर्गेजर। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए जाएंगे बट इसका जो ओनरशिप है, वो जो इमूवेबल असेट्स का जो ओनरशिप एंड पोजीशन कस्टमर के पास ही रहेगा, क्योंकि इमूवेबल असेट हम लोग फिजिकली नहीं दे सकते, हम लोग सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? ऑन द डिफॉल्ट, mortgagee, that means bank, can take the ownership and possession of the security with the court's permission. Now, in case of default, अगर रीपेमेंट नहीं किया, mortgagee जो है बैंक can take the ownership and possession both of the security with the court's permission. क्लियर है? वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी बैंक के पास सबमिट किए, बट जो एक्चुअल बिल्डिंग आपके पास है, एक्चुअल घर जो है, वो कस्टमर के पास ही रहेगा, खुद के पास ही रहेगा, उसका ओनरशिप भी एंड पोजीशन भी। इन केस वो मॉर्गेजर ने और कस्टमर ने रीपेमेंट नहीं किया, बैंक क्या करेगी, वो जो ओनरशिप एंड पोजीशन है ऑफ दैट सिक्योरिटी ऑफ दैट असेट्स विल ट्रांसफर टू द बैंक। बैंक के नाम पे वो घर, असेट्स, जो सिक्योरिटी जो कुछ भी है वो क्या हो गया, बैंक के नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। इट्स नोन एज अ मॉर्गेज बाय टाइटल डीड। जब टाइटल डीड, ओनरशिप के एग्रीमेंट, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास डिपॉजिट किए जाएंगे, उसको बोला जाएगा मॉर्गेज बाय टाइटल डीड। क्लियर? नेक्स्ट इज लीगल मॉर्गेज। इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड बोरोअर। ओके, लेंडर एंड बोरोअर, दैट मीन्स मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी, एंड इट हैव टू रजिस्टर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके, जब ये मॉर्गेजर मॉर्गेजी के बीच में एग्रीमेंट होगा, लोन दिया जाएगा, it have to be registered at registered office. Okay, all the title deeds, that means all the ownership documents and the property documents is not necessary to be submitted with mortgagee. ठीक है, जो हमने देखा था लास्ट पॉइंट में, लास्ट टाइप में, जहाँ पे सारे टाइटल डीड्स, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैव टू सबमिटेड विद mortgagee, that means bank. In this case, legal mortgage में सबमिट करने की जरूरत नहीं है. Okay, and the stamp duty is very high because it is registered by registered office. Okay, is known as a legal mortgage. जिस केस में लेंडर और बोरोअर, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर करना पड़ता है बाय रजिस्टर्ड ऑफिस। सेकेंड पॉइंट, ऑल द टाइटल डीड्स एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट बी सबमिटेड, डिड नॉट नेसेसरी टू बी सबमिटेड, सबमिट करने की जरूरत नहीं है, और which required a very high stamp duty, is known as a legal mortgage. And last point is equitable mortgage. Okay? The loan agreement between lender and borrower. There is a loan agreement between lender and borrower. They should not be registered. They did not be registered at registered office. यहाँ पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ लीगल मॉर्गेज में ही रजिस्टर करना पड़ेगा। टाइटल डीड एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड विद मॉर्गेजी। लास्ट हमने देखा लीगल मॉर्गेज में टाइटल डीड और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हियर टाइटल डीड एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड विद मॉर्गेजी, दैट मीन्स बैंक, एंड स्टैम्प ड्यूटी इज वेरी लो। यहाँ पे हम लोग लाइक लीगल मॉर्गेज वी आर नॉट रजिस्टरिंग इट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, सो हियर द स्टैम्प ड्यूटी इज वेरी लो। क्लियर? समझ में आया? लीगल मॉर्गेज एंड इक्विटेबल मॉर्गेज अपोजिट है, टोटली अपोजिट है। लीगल मॉर्गेज में आप लोग क्या करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर करोगे। In equitable mortgage, you need not register any loan agreement. In legal mortgage, you have to submit all your title deeds and property documents. You are not required to submit. In equitable mortgage, you have to submit. In legal mortgage, stamp duty is very high. In equitable mortgage, the stamp duty is very low. Clear? These are all the types of mortgages. Please go through it, and any doubt, please ask. Thank you so much.